Good afternoon, students. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, in the last class, we have discussed TLB, if you remember. Yes or no? We have discussed the numericals based on TLB, in which total memory access time, I can call average memory access time, was asked to find, right? I'll show you the numericals. Just 1 minute. Yes. So can you see the PPT now? Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. In this, we need to find the effective access time of the memory. Okay, and we have done two numericals based on this formula and based on this concept of TLB. Yes? हाँ जी। Yes, ma'am. ठीक है, हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था, एक हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था. So after this topic, there is another topic, that is memory protection. How we can protect our memory? Okay, suppose there is a file, we want to protect that file, that we can allow users to read that file. Okay, we cannot allow users to write something on in that file. So we can protect the file by setting the protection bit. Okay, so we can add on protection bit along with every page, and it will define whether that page is accessible for read, is accessible for write, or for execute. Okay, so if its a bit is set to read only, then a user cannot write anything in that file. So we can inhibit that protection, that memory protection, by adding one bit which will define the protection. Fine. Suppose किसी page है, उसका जो protection bit है, that is set to read only, and if a user wants to write something in that file, then he cannot write, it will generate a trap. Okay, next is valid invalid bit. Okay, there is a valid invalid bit which will define whether that page is valid or invalid. Now what is the meaning of valid page and invalid page? Valid page is, if the page is valid, that means that page is present in the logical address space of process, and if page is invalid, that means that page is not present in the logical address space of that process. Okay, so if the valid invalid bit of page is set to valid, that means that page is present, and if invalid, that means page is not present in the logical address space. Fine. Next is, you can see this diagram. Here are my pages 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Fine. So these are the addresses of all the pages. Fine. These are logical addresses. And now we can see in the page table, these are the frame numbers of the respective page numbers. Suppose this is 0, 2. That means page number 0 is stored in the frame number 2. Page number 3 is stored in frame number 7. Now you can see the bits V, that is for valid bit, and I is for invalid bit. Now you tell me, what does it mean if the valid invalid bit of 0, 1, 2, 3, 4, 5 is set to valid and 6, 7 invalid? What does it mean here? What do you understand by this V and I? Can anyone explain this diagram? Yes, anyone who will explain this diagram to me? Yes, anyone? No, ma'am. किसी को समझ में नहीं आ रहा ये डायग्राम? मैम थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, मतलब हाँ. जैसे हम लोगों ने चेक किया
था कि हाँ। पेज नंबर, फिर उसके उस पेज में हम लोग को कौन सा वाला मतलब एक नंबर पिक करना, फिर उस की वैल्यू। नंबर नहीं पिक करना बेटा, हमने सपोज करो आई वांट टू सर्च पेज नंबर 1, नॉट tell me where is this page number 1 stored, in which frame it is stored, थर्ड फ्रेम in third frame. and Fine, third frame is and valid. its bit is set to valid. Its bit is set to valid. What does it mean? मतलब इसमें पेजेस स्टोर किए जा सकते हैं, मतलब इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है, ऐसा कुछ? No, that means this page is present in logical address space of this process. ओके, ठीक है? And if it is invalid, that means this page is not present in the logical address space of that process. ठीक है? So now you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5. These 5 pages are present here in the frames. 0, 1, 2, 3, 4, 5. That's why their bit is set to valid. Now you can see 6th and 7th page is not present. That's why their bit is invalid. okay. Clear है? Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. चलिए. Next is segmentation. मैम रिपीट कर दिए, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा. Now you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5. These pages are present in the memory. You can see here page 0 is present in frame number 2. Page 1 is present in frame number 3. Page 2 is present in frame number 4. Likewise 3, 4 and 5. So their bit is set to valid. Now you can see page 6 and 7. Their bit is set to invalid because these two pages are not present in the logical address space of the process. ओके मैम, थैंक यू मैम. अब क्लियर हो गया? यस मैम. चलिए. Next. One second. पेज टेबल स्ट्रक्चर है, ये आप खुद देख लेना कि क्या क्या हमारे पेज टेबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं. हायरार्किकल इन्वर्टेड पेज टेबल, ये आप लोग देख सकते हो. मैं आगे बढ़ती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है. Yes, now this is last topic. Okay. Yes. What do you understand by segmentation? First, tell me this thing. What do you understand by segmentation? Yes, anyone? चलिए, सेगमेंटेशन से पहले हम आते हैं शेयर्ड पेजेस पर. ठीक है? शेयर्ड पेजेस में से पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर्ड मेमोरी? मैम जो मेमोरी ऑक्यूपाइड हो. ऑक्यूपाइड हो. फिर शेयर का मतलब क्या होता है? Then why we are calling it as shared memory? If it is occupied, we can call it as allocated memory. Why we are calling it as shared? मेमोरी मैम, या फिर इसको किसी चीज के लिए पहले से ही डिसाइड कर दिया गया हो कि मतलब ये मेमोरी यहाँ पर ही यूज होनी है. So that could be defined memory. Why we are calling it shared memory? मैं नाम का मतलब पूछ रही हूँ. शेयर मतलब कि उस चीज को शेयर किया जा रहा है बाय मल्टीपल प्रोसेसेस, बाय मल्टीपल यूजर्स. ये तो समझ में आता है? यस मैम. ठीक है. शेयर्ड मेमोरी में क्या था कि हमारे वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस व्हिच आर यूजिंग द वन कॉमन मेमोरी व्हिच इज नोन एज शेयर्ड मेमोरी. Fine. Similarly, we have shared pages with us. Fine. There could be some pages which can be shared, which are common among multiple users. So we can
create shared pages which can be shared by the multiple processors, by the multiple processes and multiple users. ठीक, तो उसके लिए हमने क्या किया, there could be two type of data. एक यूजर है, या तो वो कोई शेयर डेटा को यूज कर रहा होगा, या फिर वो कोई अपना प्राइवेट डेटा which is not common to others, उस डेटा को यूज कर रहा होगा. यही दो आपके डेटा हो सकते हैं आपके यूजर के पास, yes or no? यस मैम. फाइन. तो एक तो शेयर डेटा, एक आपका होता है प्राइवेट कोड एंड डेटा. तो शेयर कोड, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग द शेयर पेजेस, कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. फाइन. सपोज आई हैव सपोज देयर आर 40 यूजर्स. ठीक है, ईच वांट्स 150 KB. ये कैसा है, शेयर्ड है, मतलब जो ये कॉमन है, कॉमन है कुछ 150 का, 150 KB का, प्लस 50 प्लस 50 KB of private data. Fine. Now next is, अगर आप 40 यूजर्स को चाहिए 150 KB ऑफ कॉमन डेटा एंड 50 KB ऑफ प्राइवेट डेटा, तो इन टोटल कितनी उसको स्पेस चाहिए होगी एक यूजर को? 90. क्यों 90 बेटा? सर मैम 40 के भी आपने 40 KB कहाँ मैंने यूज किया है? 40 यूजर्स हैं, हर एक को 150 KB चाहिए कॉमन डेटा को स्टोर करने के लिए, 50 KB चाहिए प्राइवेट डेटा को स्टोर करने के लिए. तो कितना कितना उसको चाहिए होगा स्टोरेज? 5. बेटा 200 होगा ना, इतना क्या सोच रहे हो? 150 प्लस 50. अच्छा वो 50 अलग था, हमें लगा उस 150 में ही एडेड है. ठीक है, अब अगर मैं 40 का, ये तो मेरा एक यूजर का हुआ, 40 का अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 40 यूजर्स के लिए? जल्दी बताओ. 4 दुनिया 8,000. बिल्कुल, 200 into 40 is equals to 8000 KB. ठीक, तो अब आप देखो कि हर एक यूजर एक कॉमन डेटा को, जो कॉमन शेयर डेटा है, उसको मल्टीपल टाइम स्टोर किया जा रहा है आपकी मेमोरी पे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी बेवजह आपका वेस्टेज हो रही है, नहीं हो रही मेमोरी स्पेस की? ठीक है, तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट आया शेयर्ड पेजेस का, कि अगर कोई ऐसे कॉमन पेजेस है which can be shared, which are common to multiple users, then we can store a single copy of that shared page, and that copy can be accessed by all the users which wants to access that पेज. जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, 150 KB का जो शेयर डेटा था, मैं उसको अलग अलग स्टोर कर रही हूँ हर एक यूजर के लिए. फाइन. तो लेकिन मेरा क्या सोल्यूशन है अब, कि मैं इसको सिर्फ एक ही बार यूज करूंगी. तो मैं अगर एक ही बार स्टोर करूंगी 150 KB को, तो कितना मेरा स्पेस बचेगा? 150 KB तो मैंने एक बार स्टोर कर दिया उस कॉमन कोड को, प्लस जो हर एक 40 यूजर्स का प्राइवेट डेटा है वो तो अलग अलग ही स्टोर होगा, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन. ठीक है, तो 40 into 50, तो कितना आएगा बेटा ये आपका 2150 KB. Yes or no? Yes, ma'am. So this is common data, or you can say shared code, and this is 50 KB is for private code and data. एक और चीज, shared code must appear in same location in all the address spaces of all the processes. ठीक है, आपका जो प्राइवेट डेटा है वो आपका डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, लेकिन हमारा जो शेयर डेटा है वो सारे प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस में एक ही लोकेशन पे होना चाहिए. ठीक, नाउ नेक्स्ट आपका डायग्राम है, अब इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर बताइए शेयर्ड डेटा कौन सा है? शेयर डेटा कौन सा है यहाँ पर? 346. ये तो बेटा आपके पेज टेबल में डेटा होता है. पेज टेबल पेज ऑफ फ्री नंबर ED1, ED2 एंड ED3. ED1, ED2 एंड ED3 है. ठीक है, Yes, ma'am. सो ED1, ED2 एंड ED3 ये मेरा शेयर्ड कोड है. और प्राइवेट कोड क्या है? डेटा 1 फॉर प्रोसेस P1, डेटा 2 फॉर प्रोसेस P2 एंड डेटा 3 फॉर प्रोसेस P3.
देखो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों, ये मेरा शेयर डेटा था तो इसको मैंने एक ही बार स्टोर किया है, ना कि हर एक के लिए अलग अलग स्टोर। ठीक है, तो मैंने देखो क्या किया, व्हाट आई हैव डन हियर इज ed1 is stored in frame number 3, ed2 is stored in frame number 4, ed3 is 6 and data 1 is 1. देखो I have stored ed1 3, ed2 4, ed3 6. Now I have specified the frame number here in the page table of all the processes, so they can directly access that code from that frame. And this shared code must be re-entrant code, matlab that should be read only code. Okay, no process should be allowed to write something on that code. Clear हुआ ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब clear है what are shared pages? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Next is segmentation. Segmentation is memory management scheme that supports user view of memory. देखिए बेटा, पहले हम पेजिंग पढ़ रहे थे, पेजिंग में हम क्या कर रहे थे, we were dividing the logical address space into pages. Here we are dividing the logical address space of the process into segments. Fine. So suppose you have program, it could be the collection of the segments. जैसे आपका main program का अलग segment है, प्रोसी कोई आपका function है उसका अलग है, कोई object है उसका अलग segment होगा, local variables है वो अलग segment में store होंगे, तो इस तरीके से आपका program है वो भी एक, it is also a collection of segments. Next, बेसिकली आपका क्या हो रहा है, आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे जो भी सब रूटीन होगा उसका मेरा अलग सेगमेंट होगा, स्टैक है उसका अलग सेगमेंट है, सिंबल टेबल है अलग सेगमेंट है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं दो पैरामीटर्स पास कराऊंगी, सेगमेंट नंबर एंड इट्स ऑफसेट। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे आपका यहाँ पे दिखा रखा है कि आपका सेगमेंट 1 is stored here in frame number 0, 2 is stored here, 3 is stored here, 4 stored here in frame. वो फ्रेम्स में ही स्टोर होंगे, लेकिन फर्क क्या है, पेजिंग में हमारे पेजेस की बात कर रहे थे, सेगमेंटेशन में हम किसकी बात करेंगे, सेगमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, सो लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ 2 टपल, इन केस ऑफ सेगमेंटेशन 2 टपल होंगे, क्या क्या मैंने बताया आप लोगों को, सेगमेंट नंबर एंड इट्स ऑफसेट। ठीक है, segment number maps 2-dimensional physical address each table entry has. आपका जो सेगमेंट नंबर होगा उसको हम चेक करेंगे, हमारी एक सेगमेंट टेबल होती है, इट कंसिस्ट ऑफ बेस एंड लिमिट ऑफ ईच सेगमेंट नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको टेबल अभी दिखाती हूँ। ठीक है, पहले आप ये वाले 2 पॉइंट समझ लीजिए। एक चीज समझ लीजिए, बेस इज beginning address or starting address of that segment and limit is length of the segment. अगर मैं बोलती हूँ कि बेस 100 है, लिमिट हमारा 50 है, तो मेरे एड्रेस उस सेगमेंट के कहां से कहां तक पॉसिबल हो सकते हैं? Yes, if base address for segment 1 is 100 and limit is 50, then what could be the possible address of that segment? Yes, anyone? No, ma'am. बेटा बेस अगर 100 है, ठीक है, और लिमिट 50 है, लिमिट मतलब आपकी लेंथ सेगमेंट की 50 है, तो एड्रेस कहां से कहां होंगे, 100 to 150 नहीं होगा क्या? बेस टू बेस प्लस लिमिट Okay, ma'am. होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So base is contains the starting physical address where the segment resides in the memory and limit specifies the length of the segment. ठीक है, तो आपके सेगमेंट टेबल में क्या स्टोर होता है, हर एक सेगमेंट का क्या होगा, उसका बेस क्या है और उसकी लिमिट क्या है। ठीक है, there is a segment table base register which points to the segment table's location in memory. Just give me a minute, okay?
यस सो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी तो आप लोग समझ नहीं जाइएगा. सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर इंडिकेट्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूज्ड बाय अ प्रोग्राम. ठीक है, कि आपका जो सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर है बताता है कि आपके कितने सेगमेंट्स हैं, मतलब आपके कितने सेगमेंट्स हैं आपके टेबल में, और यू कैन कॉल इट एज अ लेंथ, कि लेंथ कितनी है अपनी सेगमेंट टेबल की. ओके सो एक आपका यहाँ पर पॉइंट है, सेगमेंट नंबर एस इज लीगल if s is less than STLR. फाइन. जैसे कि आपने एक सेगमेंट नंबर जनरेट किया s, सपोज योर लेंथ ऑफ सेगमेंट टेबल इज 4. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट आई हैव लेंथ 0 1 2 3. I have 4 segments, so length is 4. Now I have generated a segment number. मेरे logical address में segment number generate हुआ है 6. So is it possible? Is it possible? Is it legal here? Yes or no? No, ma'am. So this is illegal. So if the segment number S is legal if that segment is less than the length of the segment table. Fine. Next. सेगमेंट आर्किटेक्चर, ये हम प्रोटेक्शन बाद में लेंगे, ये सुनिए पहले ध्यान से. देखिए यहाँ पर क्या है, your CPU has generated the physical logical address which consists of segment number and the offset. Okay, so first I will compare this offset with the limit of the segment. पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैंने सपोज मेरे पास सेगमेंट नंबर यहाँ पर आया, I have segment number 1 here. I will search this segment in this segment table. I'll get the limit and base value for that segment. Fine. Then I will compare this offset with the limit of that segment. Okay, suppose its limit is 50 and offset is 10. First, I will compare this offset with the limit. It should be less than this offset. Less than है ना ये? Yes, ma'am. Okay, so it should be less than with this less than limit. So if yes, then we will add this offset with base of that segment, and that will be the physical address. Okay, and if suppose इसने generate किया offset 60, which is not less than limit, so it will generate a trap of addressing error. Fine, this is how we can generate the physical address using the logical address in segmentation. Ma'am, S denotes segment and Segment number. Segment Okay. number. Okay. Segment number and segment table. और segment table का use Segment table में है आपका segment, नहीं S denotes segment number. Segment number only. Suppose 1 उसने किया 1 2 3. ठीक है, अब मैं देखूंगी इस नंबर का बेस और लिमिट क्या है, वो मुझे मिलेगा सेगमेंट टेबल से. ओके मैम. जैसे मैं पेज टेबल में क्या देख रही थी कि मेरा वो पेज किस फ्रेम में है, यस मैम. वैसे ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मेरे सेगमेंट का बेस और लिमिट क्या है. ठीक है, यस मैम. चलिए नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज गिवन हियर. Here are different segments along with the number 0 1 2 3 4, and here is the segment table. Okay, now you can see segment 1, the limit of segment 1 is 400 and 6300 is its base. So what could be the possible addresses for this segment 1? 400 to 6300. क्या बेटा? No ma'am, 6300 to 400. Sorry, मतलब 6300 6700. Very good. Base to base plus limit. So base is 6300 and base plus limit is 6700. So the possible address for this segment will be 6300 to 6700, as you can see here in the diagram. Fine. So these are segments and there are a limit and base for all the segments, and these segments are stored in the physical memory accordingly. Fine. मैम हम लोगों ने लेस देन वाला Yes. कंपैरिजन तो किया ही नहीं, वो डेटा कहाँ पे दिया होगा अगर देता तो? हाँ,
नहीं वो आपका ये बता रखा है कि कैसे आपके सेगमेंट स्टोर्ड है, आपके सेगमेंट टेबल क्या है, लेकिन वो हम कंपैरिजन करेंगे। सपोज करो मेरे पास सेगमेंट आया है 2, ठीक है, उसका ऑफसेट है आपका 200। अब बताओ मुझे, पहले मैं कंपेयर करूंगी इसको लिमिट से। 2 की लिमिट क्या है? 400। 400 कंडीशन ट्रू है नहीं है? है। 200 ट्रू है कंडीशन यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी, इस ऑफसेट को ऐड करूंगी किसके साथ? 4300 के साथ। सो 4300 plus 200 is 4500. So I will access 4500 location. ठीक है, ओके मैम। क्लियर है ये सबको? यस मैम। सिमिलरली बेटा आपका इसमें प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन बिट हो सकती है, वैलिडेशन बिट, ओके। एंट्री आपकी है उस सेगमेंट की, सेगमेंट टेबल में, तो वैलिडेशन बिट है, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं, वही सिमिलर है जैसे कि हमने उसमें किया था पेजेस में, ठीक है। यस मैम। दिस वाज सेगमेंटेशन। ये है आपका शेयरिंग ऑफ सेगमेंट, आप कैसे शेयर कर सकते हैं सेगमेंट्स को। ये आपका सेगमेंट 0 है, जैसे हम शेयर्ड पेजेस पढ़कर आए थे वैसे ही शेयर वो सेगमेंट्स भी हैं, सेगमेंट 0 सेगमेंट 1। तो ये देखो सेगमेंट 0 आपका शेयर्ड है, कॉमन है ना दोनों में। यस सो मैम। वी कैन स्टोर इट ओनली वंस। मैंने एक ही बार स्टोर किया है इसको, यहाँ पर देखो, और मैंने दोनों की टेबल में उस एड्रेस को शेयर कर दिया है। देखो टेबल में शेयर कर दिया ना, 43062 43062 एंड 25286। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी शेयर कर दिया है। दिस इज हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ सेगमेंट्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन विद पेजिंग। ये आप खुद पढ़िएगा, इसमें पेज टेबल और सेगमेंट टेबल दोनों का यूज किया गया है। डाउट होगा तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। The chapter of memory management is completed here. Now from next class we will start chapter virtual management, virtual memory management, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? मैम लैब के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बेटा पूछो। मैं आपने हमें दिया था क्रिएट फाइल सिस्टम। कौन सा? क्रिएट फाइल सिस्टम। हाँ मैम उसे हम किस लैंग्वेज में करेंगे? अगर सी में करेंगे तो हम कोड थोड़ा बड़ा हो, मतलब एवरेज 8 to 10 लाइन का होगा, और मैम सेल स्क्रिप्ट पे तो हम वो 4-5 लाइन में खत्म हो जाएगा। बेटा सी में करो। मैम सी में करना है फिर? हाँ कितनी लाइंस का बन रहा है? मैं अराउंड 10-12। तो बेटा 10-12 को ज्यादा लाइन है क्या? नहीं मैम, फिर भी सेल स्क्रिप्ट में तो मैम बहुत इजी होगा ना, कमांड्स दे दे के हम नहीं लोग नहीं फाइल नहीं नहीं क्रिएट। नहीं 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 सी में करो। मैंने कॉमन लैंग्वेज बता दी ना, सी लैंग्वेज में करो सभी। मैं और इसलिए मैम बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एक्सप्लेन करोगे तो बच्चों को तभी समझ में आएगा जब बच्चे उस लैंग्वेज से फेमिलियर होंगे। सी तो सबको पता है, इसलिए सबके लिए फेमिलियर होगी वो लैंग्वेज तो, है ओके ना। मैम। हाँ सी में कर लो बेटा, 8-10 लाइन तो ज्यादा नहीं है। मैम अभी क्रिएट तो करने का आपको उसे ऐसा ही ओपन बनना है कि क्लोज और आपको मेथड नहीं हजार दिखाना। हजार लाइन, आपको भी ये भी तो करना है, मतलब हजार लाइन के कोड भी तो लिखने हैं आपको। अगर आप 10 लाइन से डरोगे तो कैसे लिखोगे उनको, मैम है ना। डरने वाली बात नहीं है मैम, सेल के स्क्रिप्ट ने इजी पड़ रहा था फिर भी करना हम लोगों को। अच्छा चलो शेल स्क्रिप्ट में दिखा देना, अगर आपको आपको पता चल ही गया होगा कैसे करना है शेल स्क्रिप्ट में। ये सर मैम ये पूछ रहा था, क्रिएट करने का था उसे ओपन क्लोज और राइट भी करना है फाइल को? ओपन क्लोज तो मैम हाँ आपने किसी वो और से बोला था ना, दूसरे ग्रुप में। वैसे ओपन क्लोज कोई और कर रहा है, पर अगर आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अगर आप पास है तो, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। हाँ और शेल स्क्रिप्ट में भी करके देख लेना, ठीक है। ओके उसमें तो 3-4 लाइन का एक कोड है, हाँ करके देख लेना उसको भी, ठीक है। मैम ग्रेट। एक बार से आप हाँ बेटा वो आपने ग्रुप वाइज टास्क दिए हैं वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि उस दिन हम क्लास में थे नहीं तो हमें पता नहीं है करना क्या है। मतलब ग्रुप एक वाइज मिनट। बाकी मेट्स ने बताया बट उतना समझ में नहीं आया, तो एक बार आप बता दीजिए। ग्रुप नंबर मैंने 7 ग्रुप बनाए हैं। फर्स्ट ग्रुप का टास्क है गेट पीपीआईडी, सॉरी गेट पीआईडी ओनली, गेट पीआईडी सिस्टम कॉल करना, दैट इज गेट प्रोसेस आईडी। सेकेंड ग्रुप का है गेट पीपीआईडी, दैट इज गेट पेरेंट प्रोसेस आईडी। थर्ड ग्रुप का है क्रिएट सिस्टम कॉल टू क्रिएट अ फाइल। फोर्थ ग्रुप का है फॉर्क टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। फिफ्थ का है ओपन फाइल। सिक्स्थ का है क्लोज फाइल और सेवेंथ का है रीड फाइल। हाँ बताओ। मैम मेरा
63 है तो मेरा ग्रुप, क्योंकि हमारे आपका क्या है, आपका रोल नंबर क्या है? 63। आपको बनानी है रीड फाइल, रीड सिस्टम कॉल के लिए। तो कोई मतलब ये प्रोजेक्ट से तैयार करना है या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह भी? आपको सिर्फ कोड बना के मेरे को कोड दिखाना है, मैं आपको को होस्ट बना दूंगी, आपने स्क्रीन शेयर कर देना और एक्सप्लेन करना है आपको आपने कैसे कोड बनाया है। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। विवेक अग्रवाल को पता होगा, मैंने उसको ग्रुप हेड बनाया था उस दिन, वो प्रेजेंट था, तो उससे आप बात कर लेना, ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। थैंक यू मैम। मैम आई थिंक कोई और डाउट पूछ रहा है। वो थैंक यू बोल रहा था बस। हम्म बड़ी एक्साइटमेंट में।